दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे किसान भाई और बहनें जो है दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सरकार ने कुछ ऐसे नियम कानून जो है लागू कर दिया है जिससे किसानों का बहुत घाटा हो रहा है बिना उनसे पूछे। आज किसानों की ये मांग है कि ये जो कानून लाया गया है उनको हटा दिया जाए, जिसके चलते आज हम आए हैं सिंधु बॉर्डर पे और किसानों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें क्या तकलीफ है इस बिल से। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं हमारे किसान और भाई और बहनों से। हमारे देश के किसानों से किस तरीके से इतनी कड़ाके की ठंड में संघर्ष कर रहे हैं अपने हक के लिए। तो सर, आप लोग कब से यहाँ हैं? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਝਾਕ ਕੇ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਦੇ ਆਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ये मोदी साहब हाथ बन के बेनती है एक कानून तिने रद्द की जा रही है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे कितने दिन से ठहरे हुए हैं, आप लोगों के ठहरने की क्या व्यवस्था की है सरकार द्वारा? सानू जी एक तरीक तो चले ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਟਰਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੇ ਲਈ ਕਹੇ ਆ, ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਦੇ ਗੁੱਦੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤਰਪਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਠੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਏ ਲੰਮੇ ਪਏ। ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਠੰਡ ਵੀ ਹੈ ਆ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਫਿਰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਗਏ ਆ। सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਆਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, यही जो उसे करके जाते इसी पर करके आए। सरकार की तरफ से कोई संदेश आया है कि हाँ वो आपकी मांग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, आप लोग और कितना दिन ऐसे धरना प्रदर्शन करेंगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਜੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਗਾਂਵ ਜਾਣਾ ਪੁੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬਾਰਡਰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ आप लोगों के साथ आपके परिवार वाले भी यहाँ पे हैं? हाँ जी, ये परिवार की पिंड के हैं। ये पिंड कोटली वसावा सिंह है, जिला तरनताਰਨ, तहसील पट्टी, गटवा थाना लागे। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਗੇ, ਬਾਬੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। अच्छा, इस बिल से आपको क्या परेशानी, क्या दिक्कतें हो रही है? जो बिल सरकार ने जो कृषि कानून ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਆ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਏ ਸਰਕਾਰ। सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हो? आपकी कौन सी बात सुने, क्या करें वो आपकी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਆਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਮਰਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਰੱਦ, ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? ਅਗਲਾ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਆਖਣ ਕੋ ਉਤਰੇ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣਗੇ ਤੁਰੇ ਰਹੀ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਘ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਥੋੜਾ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਤਰਾ ਥੋੜੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। सरकार ने आपसे बात करने की कोशिश की, कोई सुलह से करने की कोशिश की? 8 तारीख तो आप लोग क्या विचार रखने वाले हैं सरकार के सामने? देखो क्या बनता है। ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਗੇਂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੋਲੀ ਮਗਰੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जी सर, आप कहाँ से हैं और कितने दिनों से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं?
क्योंकि इस तीनों कानून से सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होने तो वो पंजाब और हरियाणा के किसान होंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ के किसान मंडी व्यवस्था पे पूरी तरह से निर्भर थे और मंडियों में अपना अनाज डाल के और पैसा उनको खाते पे या जो भी सिस्टम से मिल जाता है और अपना पूरा माल कब तक 90 से 100% लोग MSP पे देते हैं। तो सबसे बड़ा अगर नुकसान होना था वो तो पंजाब और हरियाणा को था। बिहार में तो MSP पे बिकता ही नहीं है, तो उनको अपने अधिकार, अपना धान का कीमत ही नहीं पता है। कुछ चंद लोग हैं जो सरकार के कर्मचारियों के वकील हैं या वहाँ पैक्सों के माध्यम से खरीदारी होती है, तो भी 4% हुई है, तो वो उसमें भी होती है बिचौलियों के माध्यम से। और कुछ किसान जो ऐसे हैं और उनका उपज, अगर मैं वहाँ छोटे छोटे किसान हैं 1 एकड़ 1.5 एकड़ का है, तो उपज कम होती है और जो पैक्स अध्यक्षों से जो क्लोज हैं उनका बड़े पैमाने पर उनके नाम पर खरीदारी होती है और पैसा उनके नामों पे जा रहा है, तो पूरा ब्लैक मार्केटिंग। आम किसान जो मैक्सिमम 90 से 95% किसान MSP से अभी तक महरूम है और 2006 में वहाँ मंडी व्यवस्था समाप्त है और कोई बदलाव नहीं आया। पहले तो फसलों की कीमत भी मिल जाती थी, मंडी थी पहले तो ठीक ठाक मिल जाती थी, जितना खर्च लगता था उससे ज़्यादा मतलब ठीक ठाक था। लेकिन जब 2006 में अब पूरे देश में मतलब जब कृषि क्षेत्रों में वैश्वीकरण हुआ है तो बीजों की कीमत तो कोई सीमा ही नहीं है कि वो कितना रेट में देते हैं। खाद की कीमत क्या वसूलेगा दुकानदार और कीटनाशक दवाओं का कीमत कितना वसूलेगा और वो MRP और उसका कोई भी बिल नहीं। आप अगर क्या बोलते हैं उसको ब्लैक मार्केटिंग के बिल आप मांगिएगा, पक्का बिल आपको मिलेगा नहीं। अगर पक्का बिल आपने किसी तरह से डिमांड कर दिया तो आपको वो न खाद मिल पाएंगे न बीज मिल पाएंगे और आपकी भी फसल का कीमत वही तय करता है। आपको अगर कोई ज़्यादा ज़रूरत है तो वो कीमत इतना कम कर देगा और जन तय करके तो 1200-1100 रुपये आपको वहाँ धान की फसल बिकती है। कोई बिहार का चैलेंज है, बिहार के किसी भी किसान डायरेक्टली अगर खरीद है और उनको जितना पैदावार है कुछ लोगों के छोड़कर जो क्लोज हैं उनको छोड़ के बाकी मास किसान को MSP आवश्यक नहीं। आप लोग क्या पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और सरकार की तरफ से क्या कोई मदद मिल रही है आप लोगों की रहने की, खाने की? देखिए, अकेले में ये जब आंदोलन का शुरुआत हुआ आप लोगों ने मतलब पंजाब हरियाणा के किसानों ने किया और तो हम लोग को भी पता नहीं था कि ये कानून है। जब आंदोलन की शुरुआत हुई टीवी माध्यम से या जो गोदी मीडिया है वो थोड़ा कम ही सही मतलब नेगेटिव ही सही लेकिन दिखाया, तो इस चीज़ को जानने की कोशिश हुई कि कृषि कानून है क्या। तब हम लोग धीरे धीरे जानना कोशिश किए। फिर हमारे यहाँ के वर्कर पंजाब हरियाणा में काफ़ी काम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा भी फ़ोन के माध्यम से जो भी कारण से भाई यहाँ आंदोलन हो रहा है किसान के खिलाफ जो 3 भारत सरकार के द्वारा 3 काले कानून लाए गए उनको हटाने के लिए वापस लेने। अब हम हमारे लिए हम आप काम कर रहे हो और मुझे जो पसंद नहीं तो आप क्यों ज़बरदस्ती देने के लिए तैयार हो? आप हमसे चर्चा कर लो ना। आप यहाँ के हालात देख लो, पूरे देश के किसानों का हालात देख लो, अलग अलग राज्य में अलग अलग परिस्थिति है। बिहार में तो आधा बिहार पानी से डूबा रहता है, आधा सूखा से डूबा रहता है, वहाँ का ये हालात है और आप ऐसे ही कानून बना रहे हो बिना जांच के। अब बताओ कि भारत सरकार के कौन मुलाजिम कहाँ गए और किस किसान से बात की, वो डाटा चलो ना। क्या आप क्या व्यू ऐसी बस फर्जीवाड़ा है जो भी, कोई किसान से चर्चा नहीं है। हमारे पूरे भारत के किसानों का मांग है और जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है पूरे देश के किसान इस आंदोलन में अपना समर्थन दे रहे हैं। भले यहाँ उपस्थित उस हिसाब से नहीं हो, मास लेवल पर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना समर्थन और जितना दिन ज़्यादा चलेगा पूरे देश के किसान इस आंदोलन से जागरूक होंगे। 26 जनवरी की जो तैयारियां चल रही है कि आप इंडिया गेट पे जो है परेड करेंगे, इसको लेकर क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं वो तो अच्छी बात है ना, सरकार भाई लोकतंत्र तो ही है। जब सरकार एकदम सुनने के लिए तैयार नहीं, पता नहीं किसके चंगुल में बंधा है। भाई सरकार तो सरकार होता है, किसी का कठपुतली नहीं होती और देश का 85% छोटे किसान हैं और हमारा कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है। किसानों के हितों की बात में यहाँ देश में किसान जिंदा है तो आप जिंदा है, अन्न पैदा करें और जवान अगर बॉर्डर पर है तो आपका देश है। इसलिए इस देश में पहले किसान और जवान, उसके बाद बाकी दुनिया की बातें होती रहेगी। हम अपना आप और हम चलते रहेंगे, मीडिया भी काम करते रहेगी, बाकी लोग भी अपना काम करते रहेंगे, लेकिन ये दोनों बहुत जरूरी है अपने जीने के लिए, किसान और देश की सुरक्षा के लिए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।
तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सरकार के फेवर में हैं या फिर किसान के फेवर में हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट है ना हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।